आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड. वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? सो हियर आर द ऑप्शंस: 15 September, 16 September, 13 September, 14 September. So here the correct answer is B. The International Day for the Preservation of the Ozone Layer is observed on the September 16 every year. This day is also known as the World Ozone Day. International Day for Preservation of Ozone Layer, जो कि हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन को ही माना जाता है वर्ल्ड ओजोन डे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड ओजोन डे. वर्ल्ड ओजोन डे 2021 का थीम क्या है? सो हियर आर द ऑप्शंस: कीप कूल एंड कैरी ऑन, the Montreal Protocol, Ozone for Life, 35 years of ozone layer protection, Montreal Protocol, keeping us our food and vaccination, cool, 32 years and healing. So here the correct answer is option C. Montreal Protocol, keeping us our food and vaccination, vaccines cool. The theme 2021 for World Ozone Day is Montreal Protocol, keeping us our food and vaccination cool. So now next question, and here the next question is India has participated in the exercise Peaceful Mission 2021 with which country? भारत ने exercise Peaceful Mission 2021 में किस देश के साथ participate किया है? So here are the options: China, Nepal, Russia and France. So here the correct answer is C, Russia. India has joined in the 6th edition of a multinational military exercise named Peace Mission 2021, has been organized by the Shanghai Cooperation Organization SCO in Russia's Oregon. ओके, सो भारत ने किसके साथ लिया है, किसके साथ ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन सी, रशिया के साथ. और इन्होंने पीस मिशन 2021 में रशिया के साथ पार्टिसिपेट किया है और 6th एडिशन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में. ओके, और ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है रशिया में, रशिया के ओरेगॉन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के द्वारा. So now next question, and the next question is name of the organization that wins the UNESCO King Sejong Literacy Prize 2021. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जीता है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021? सो here are the options: NIOS, IGNOU, CBSE, NCERT. So the correct answer is NIOS. The National Institute of Open Schooling (NIOS) of India has won the prestigious UNESCO King Sejong Literacy Prize 2021 at UNESCO's न्यू दिल्ली ऑफिस. यूनेस्को की न्यू दिल्ली ऑफिस में NIOS ने जीता है ये प्राइज. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज President Ramnath Kovind has conferred the National Florence Nightingale Awards 2020 to how many recipients? President Ramnath Kovind ने National Florence Nightingale Award 2020 कितने रेसिपिएंट को देने का फैसला किया? सो आर द ऑप्शंस 51, 52, 42, 62. So here the correct answer is option A, 51. President has conferred the awards to 51 healthcare workers and nurses for their selfless dedication and compassion, especially during the COVID-19 pandemic. So now next question, and here the next question is which country has test fires the indigenously developed submarine launched ballistic missile SLBM. किस देश ने टेस्ट फायर किया है जो कि इंडिजिनली डेवलप किया गया सबमरीन जो कि लॉन्च किया गया बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से? तो इसके ऑप्शंस है आपको इंडिया, जापान, फ्रांस एंड साउथ कोरिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ कोरिया. On 15 September 2021, South Korea successfully test fired a submarine launched ballistic missile, has become only the 7th country in the world with advanced technology. पूरे देश में ये 7th कंट्री होने वाली है साउथ कोरिया, जिसने 15 सितंबर 2021 को सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है. ओके, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है. ओके, और ये 7th कंट्री होने वाली है पूरी दुनिया में जो कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट कर चुकी है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट आई रास्टे हैज़ बीन लॉन्च्ड. कौन सी शहर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया गया है? सो हियर आर द ऑप्शंस: नागपुर, दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद. किस सिटी में किया गया है लॉन्च? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नागपुर. Union Minister Nitin Gadkari has launched an artificial intelligence powered project named iRaste in Nagpur, Maharashtra.
The aim of iRaste is to reduce accidents by 50% in Vidarbha's biggest city. The project will be implemented on a pilot basis in Nagpur in Maharashtra. Union Minister Nitin Gadkari ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट नेम्ड iRaste नागपुर महाराष्ट्र में, जिसका एम है कि एक रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। 50% रोड एक्सीडेंट को कम करने का फैसला लिया है। विदर्भा की ये सबसे बड़ी शहर है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है और ये नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में पायलट बेसिस में इम्प्लीमेंट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इसे चलाया गया है। इसका नाम क्या है? iRaste। इस प्रोजेक्ट का नाम है iRaste, जो कि नागपुर महाराष्ट्र का है और इससे उम्मीद यही लगाया जाता है कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी इसके बाद से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is hosting the 6th Exercise Peaceful Mission 2021 from September 13 to 25, 2021? कौन सी देश है जो कि 6th Exercise Peaceful Mission 2021 लॉन्च करने वाली है 13 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2021 तक? So here are the options: Russia, India, Zimbabwe, China. I repeat options: Russia, India, Zimbabwe, China. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रशिया। या करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया इज होस्टिंग द 6th मिलिट्री एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 in the Orenburg region, and the Peaceful Mission 2021 exercise will be conducted between 13th September 2021 and 25th September 2021. Okay, रशिया होस्ट कर रही है 6th मिलिट्री एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 ऑरेनबर्ग रीजन में। कहाँ पे? ऑरेनबर्ग रीजन में। और ये पीसफुल मिशन 2021 ये कंडक्ट की जाएगी 13 सितंबर 2021 से लेकर 25 सितंबर 2021 तक ये फंक्शन कंडक्ट की जाएगी। ओके, ये क्या है? रशियन के द्वारा होस्ट किया जा रहा है पीसफुल मिशन 2021 6th मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ से। ओके, so now next question, and here the next question is, which Indian company has launched India's first CO2 capture plant for extracting CO2 directly from the blast furnace gas? So इंडिया की कौन सी वो कंपनी है? पहली इंडिया की सबसे पहली CO2 कैप्चर प्लांट की कौन सी कंपनी है जो कि CO2 डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकती है ब्लास्ट फर्नेस गैस से? सो हेयर आर द ऑप्शंस: BHEL, ONGC, टाटा स्टील एंड नन। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, BHEL. Tata Steel has commissioned India's first carbon capture plant at its Jamshedpur works, has become the first steel company in India that has adopted such a carbon capture technology. The plant will help in extracting CO2 directly from the blast furnace gas. टाटा स्टील ने कमीशन दिया है इंडिया की सबसे पहली कार्बन कैप्चर प्लांट को, जो कि जमशेदपुर में है। टाटा स्टील इसने दिया है इंडिया की सबसे पहली स्टील कंपनी को कमीशन। किसके लिए? ताकि ये सबसे पहला कार्बन कैप्चर प्लांट यहाँ पे इंडिया में लॉन्च कर पाए। और ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के तहत इस पे काम किया जाएगा। और ये प्लांट किस चीज़ में हेल्प करेगा? CO2 को ब्लास्ट फर्नेस गैस से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन नेम्ड शून्य फॉर प्रमोटिंग जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया एक नया कैंपेन जिसका नाम है शून्य? और ये शून्य के तहत क्या होता है कि ज़ीरो पॉल्यूशन व्हीकल्स, मतलब कि जो भी व्हीकल्स होगी उससे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगी। तो ऐसा किसने लॉन्च किया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: नीति आयोग, DRDO, इसरो एंड नन। So here the correct answer is option A, Niti Aayog. Niti Aayog has launched a new initiative named Shunya in collaboration with US-based Rocky Mountain Institute and RMI India. नीति आयोग ने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है शून्य,
और इन्होंने कोलैबोरेट किया है यूएस बेस्ड रॉकी माउंटेन RMI और RMI इंडिया के साथ। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।